Okay, recording started. So in the last session, actually, we have seen basic questions like frequently or basic stuff related to iOS UI kit and Swift. Okay, it's not in the context of Swift UI, but yeah. So I hope yes, last wala session you have gone through it. जो लोगों ने miss किया, I hope आप लोगों ने देख लिया होगा. So today we are actually going to look into this environment, state objects, and observable objects. Okay, again, very basics, or you can say core fundamentals of software, and very important to how you can pass the data, how you can maintain states. It's all about that. So basically, passing the data between the views. So between the parent view, child view, or other views, whatever. So it is important. So let's start with this, and I hope so far you are feeling a bit comfortable with SwiftUI. You can thumbs up so far which we have gone through. So let me just quick recap. So we started with view modifier, very basic stuff. Then we come to the list, horizontal stack, vertical stack, basic stuff, not that complex one. We'll come to the complex part later on. And we also look into this async await and then this what we have covered. So yeah, state binding. So all these things we have covered so far in the SwiftUI. And in multi-threading, we have covered GCD and dispatch barrier, dispatch groups, semaphore. So all these topics we have already covered. Serial concurrent queuing, all that stuff. Okay. So yeah, let's start with this. I have one doc. Let me share my screen quickly. Just a second. संडे का दिन है आज लोग रिलैक्स कर रहे हैं हम लोग हैं आज कोई let me share my screen. ठीक है, so there is a basically two things are here. State object and observed object. Let me open the project as well. But first we go through the doc and then we'll come to the next code. Okay, I hope my doc is visible, everyone. You can use thumbs up once. Doc is visible, right? Cool. Thanks. So I hope have you heard this kind of term before and also, right? There is a concept of state object and observed object in SwiftUI. So today we are going to look into this. So first, let me tell you, both are basically kind of passing the data. But there is some one minute difference in these two. Like basically behavior same hai, काफी हद तक these are two are similar. But there is one key fundamental difference in these between two, which we are going to look into it. And we have one example we try with both. We're going to try with both by using state object, by using observed object. Okay, so let's come to the what is observable object and then observed object and then what is state object and what is all these things. Okay. So observable object is basically a protocol, okay, in which you basically define like when you want a you can say notification of the when you want to publish the changes the data. So whenever you have this kind of you defining the data now with this observed object, you need to basically confirm with this protocol. Let me show you the code directly. So suppose I'm talking in this context. See, so counter view model, basically if you search here, so I'm going to define this property. Here you can see this code as an observed object. So whenever you kind of defining observed object or fluid object, that is the condition in SwiftUI basically. You need to confirm with the observable object protocol. So let's go to the definition of this. So you can see this is required actually. Okay, we can't skip this. So this is basically a protocol in which SwiftUI come to know, okay, this is particular model or this particular class, we are going to observe the data. Basically, it's the data, right? So something you are storing, something you're observing, and basically, again, you can relate to with this with RX Swift and Combine. You have this publish subscriber and all that thing. I hope maybe you're aware about it. Publish subscriber. So it's like a similar behavior you're getting, or even we in UI could be used to have notification center, right? So even though you can relate to that also, notification center or even property wrappers, did set, will set, and all that thing. So again, these are a kind of property wrappers, okay? This particular objects and this observed objects and all that. So basically, what is happening?
You are telling to SwiftUI, okay, we have one model. We want to make sure that something gets changed in this counter. So basically, it's all about this counter. So here we take on a very basic example, but yeah, here anything can be there. Like either it's an int swap, like it's a custom class object, or it's a normal string int or whatever, double float, anything. So we want to make sure that something, if whenever something gets changed in this counter property or in this particular data, we should be aware and we should get a notification callback to our all basically parent views. Okay, this is a kind of child view, and upper that, like again, we here there's a hierarchy, right? Parent view, child view kind of hierarchy. Again, not in the context of inheritance, it's the context of the view hierarchy. Okay, don't confuse with that. So here parental means hierarchy wala to, or you can say again, initially I've shared this thing also, or mentioned this thing. You have basically main view and then sub views. We used to do this, right? In UI kit also. We have main view, then sub views. We have stack view, then we have sub views. We have this arrange sub view function, right? Or we have in view controllers also, we have again main view as a whole view property you have, right? Inside that you're adding sub views, right? So it's like that, similar thing. So the point is, whenever you change something in child view also, it should be notified in parent view, and vice versa. If you something change in parent, again it goes to the child. And we want to do this without, there are some, okay, something it's solving you. Even we have seen the state and binding, but it's again different from that state binding thing. The state binding is very straightforward. You have one basically one view and one child view. That is fine. But why we are using this state objects and observed object, we'll see this. Okay, so what is basically we are doing? If you are defining your this particular C, if you're defining ki, okay, I want to observe my data with particular model, obviously you need to define some model for that. Then it is compulsory that this particular model should conform this observable object protocol, and there in which there we can have multiple properties here. Okay, we can have multiple properties here. It's not like only one property. Okay, and whichever property you want to observe, you basically define this published attribute, which again Swift come to know or software come to know, okay, this particular data they want to observe, and whenever it gets changed, it will publish the notification. It will actually send the notification whoever observing this thing. Okay, I hope you're getting this thing. So I will come to that also, and later on, even iOS or Apple remove this thing, or they not remove, but they provide a version of it. Then you don't need to write published also. There are some other ways to do that, but in later iOS 17 actually they define. Okay, so suppose in your app you're providing a minimum support of iOS 15, 16, all that thing, then obviously you can't go with that approach. You need to follow this approach also. Okay, so at least this is the basic stuff. You should know this. Then you can come to the more advanced or newer features part, which recently introduced in Apple in the last two iOS versions. Okay, so far, yeah, again, we are observing the data. We are defining some property, which is basically responsible for whenever it gets changed, you will get a notification. As simple as that. So let's come to the, again, back to the initial part. So here you define this with the protocol and make changes observable. You're actually making changes and observable. And then up now comes to the view part. Okay, you have this view part. Now your view model defined as an observed object because you're going to observe this object. And inside that object or inside that model, you define which property basically you are observing. Okay, at a time you can observe multiple properties as well. It's not like one at a time. It's not like that. Okay. So we'll see this, like you can define multiple properties, and whenever any of the property gets changed, you get the notification here and your view gets updated basically. Okay. So again, it is handling from, you can say, iOS itself. Okay, you don't need to do things manually. Again, I can relate to this thing with RxSwift, with Combine. So basically, you're defining your observers. Then whenever it gets changed, it will again reflect in your view, and it will get reflected and updated. Like that simply here also this is happening. So whenever this counter gets changed, see, we have a function increment counter in which basically we're changing the counter. So let's go to the definition of this. So what is happening here? There is one function, and again, avoid this thing. Okay, I mentioned this thing also. Suppose you're not writing at publish, then without that, how you can handle? So manually, you need to send this notification basically.
but we are not going into this thing. See this one, this you can consider. So we write it one function, and in which basically we are increasing this counter. Okay. So the point is, whenever this count value change, this counter value updates, you get a notification and your view gets updated. Okay. So again, go to the view part. This one. Here, yeah. So whenever I call, I actually introduce one button. Going to the Xcode itself. I just started with the code base, but yeah, let me move to the Xcode. But yeah, what we are doing here, we have one button. Whenever you click on this button, this function is going to call, and whenever this function is going to call, count value change and count value change, and again, this particular your view gets updated. Okay, as simple as that. But yeah, what is the difference between again state object and observed object? There is a difference. So I will show you in the example itself. So basically, whenever you are owning the state, then we go with the state object. Whenever it's like you're just creating a state outside and you're just observing it, then we are going with the observed object. What that means, we'll see. And what is the main key fundamental difference? So this is basically the key fundamental difference, I can say. In state object, your state basically stays alive and persists the particular state. I will show you with the example again. It's maybe even confusing here right now, but don't worry. So let's jump to the Xcode itself. Then you will be understand better. So let me open my Xcode just a minute. I have this code here. Yeah. So I'm sharing my screen, entire screen. Entire screen. Let me know once it's visible. Screen visible, right? Screen visible. Thumbs up. Yeah, thanks. So let's come to the Xcode. So you can see here, I have basically what I'm doing here. I have, let me run this code, then you can relate it better. And let me first run with this observed object. Okay. Cool. First I'm running with C observed object, then I will run with the state object. Again, I say already, I said key, काफी हद तक both are similar. मतलब in so many countries these are similar, but there is one key difference which we are looking into it. So let me run this project once and I can show you how this thing is working right now. And also remember there is one parent view here. I can comment it here. And there is one, this is basically your parent view, or I can say main view. Inside that we have one child view. Okay. So okay, this is basically parent view and this is your child view, I can say. This is your child view. Okay. So yeah, let's go into the simulator. And see right now what is happening. Whenever I'm calling randomized number, any random number is getting generated. And I can again update the counter. It's see the count value increasing and it's also updating the this particular view. But whenever again I hit the randomized number, see the counter is set to 0. So you're getting the point. There is a problem here. In observed objects, the child state again not persist basically. Because this child actually holds this state particularly, not the parent actually holding the state. To resolve this, we need to use the state object to maintain the state in the child view, because child view are actually owning the state of this particular counter. This parent view actually nothing to do with the child state, if we can say, right? So that's why it's behaving like this. So whenever I hit this randomized number, it actually recreates the whole view and reset the state. It's not maintaining the state, or it's not actually owning the state, or maintain the state particularly. Okay, so to fix this, what we will do, I hope my screen visible. Yes. So what we will do, we just simply I will change this with observed object with the state object. Now you can see again. Let me run the code. Just a minute. Now you can see the problem is solved. Now I can enter randomized number. I can increase my counter. Again I hit this. So counter is not getting affected. The state is maintained for the counter also. Matlab for the child view also state is maintaining, and for parent also maintaining. Matlab nothing. Matlab this should expected, right? This is the right behavior. So I hope you getting this point first, like you getting the difference between that.
If you want to maintain the child state and your child actually basically responsible for that particular state or owning that state, then obviously go with the state object. If you want to maintain the state of the child also. If you don't want to maintain the child state, you want to intentionally reset that state whenever parent state gets changed or whenever parents going to recreate the whole view, then obviously go with observed object. But if you really want the your child should also maintain, even though your parent is getting recomputed, but your child state doesn't affect or doesn't reset to again back to zero, then obviously go with the state object thing. Getting this point? Anyone? You can thumbs up. Basic difference you're getting. Thumbs up once. Okay. So let me go through the code again. What is here? This is the parent view. What is parent view is happening here? There is one property, random number, which is basically the state property. Again, state property is nothing to do with the state object or observable object. It is specific to this local view, right? We already seen the state binding in our first two sessions, right? So that is basically just to bind this state property here in the text property, right? So that is fine. But in this random view, see, I'm actually random element is there, and then this counter view is here. See, this I'm talking about. So basically, what is happening again? This is parent view, and I'm here basically appending my child view that I'm seeing, right? To maintain this counter view ka matlab state, this is important state object because state objects here are basically responsible to maintaining this particular state, which is again actually inside this view model. But yeah, the thing is this counter view is responsible for that. But if you go with the observed object, obviously this is going to reset and it's not going to maintain it. Okay, that is the thing. And inside counter view, nothing but we have only one count property, this view model, and one function which is actually responsible to increase the counter. And in this counter view, we have nothing but one property, which is again having a model, you can say having a data property, a view model property, you can say. And the body is nothing but there is one label and one button. Button, like whenever you click this button, wo function call ho raha hai. It's increasing the counter, and one label simply which is showing the count value, right? Here itself, right? So this is our one label, one counter which is hitting the function, and one randomized number which is here. You can say again one button. Well, will you hitting 0 to 1000? Any random element is getting generated. It's a core iOS function. Nothing to do with any random logic. Nothing to do with. We don't have any custom logic for this. It's a default function we are calling. Take a library function. So I hope this getting picture clear. So whenever you want to maintain the state in parent-child view, or you want to actually intentionally want to maintain the child state, you can say, obviously go with state objects. And if it's not the case, then go with the state of observed object. Sorry. So let me go again to the doc. So you can see here the differences. So basically, observed an object created outside, and in observed object actually it's observed the state, but again when parent view it's recomputed, the child state doesn't maintain, and it also resets to back to zero or back to initial state. State object actually what happening? You create and own the object inside. Whenever you actually doing like these kind of scenarios, you go with the state object. Okay, I can show you here. We have a point. See why state objects is better here, because we are creating the view model inside the view, and we need software to retain it properly across the view reloads, like navigating back, forth, whatever. So whenever you want to maintain that particular child view state, then state object is always a better choice instead of observed object. Okay. Also, state object ensure the view model doesn't get recreated every time. The view readers, which could reset the count to zero. So what is happening in state object? It makes sure that whenever your parent view actually recomputed now, your child view is not getting recomputed. So that's also state is maintaining. Getting this point? But in observed object, it actually recreates it. See, what if we use observed object? Software may recreate the view model every time the view is reloaded. So basically, parent view whenever it is recomputed, the child view also getting recomputed. Basically, that's why the state goes to zero again. So count would keep resetting to zero, not what we want, right? So what we want actually ki counter state अपन ये चाहते हैं, right, कि counter state maintain रहे. But in observed object is not the case. Observed object में जब भी your parent view recomputes, your child view also recomputes. Kind of you can say that like this. Okay. But in a state object, it will make sure your child object, again, unnecessary, it's not going to recompute when your parent actually recompute. Okay.
Getting this point? You can thumbs up once, so we can proceed with the other stuff. Okay, then are there some points are there. You can go through this log later on. But this is the major difference I want to show you. This is the major difference. And again, both are using to basically maintain the state and passing the data. That's it. Okay. So you can say in child view, I can say this thing, observed object, and this in main view, you can use as state objects like this. Okay, I hope you get the key difference basically. Again, until unless you want to play with this thing, you will not have a proper understanding detail. You need to do some hands-on on this thing. But I hope you got the main basic key difference in these two. Okay, again, it's very famous question in interview perspective also, from interview perspective also. So make sure ki you have this basic difference in the mind. Ki when I'm using state object, what is happening in the view and how the states are maintaining in the child view and parent view. And when I'm using observe object, how the behavior of view and the state maintaining behavior of parent and child. Okay, so cool. So we can move with the environment object. Let me open the environment object once. So okay, now what is environment object? Okay, environment object is, I can say, very useful thing here. So it's, you can consider it as a, I can say, like, again, user default basically, or even global properties. Okay, similar behavior you will get. We used to have singleton also. We used to have shared objects through singleton globally, right? We used to create that thing. And we also have user defaults in UIKit, right? That we remember. You can thumbs up once. The similar thing in SwiftUI, they have introduced environment object. Okay, so let's see. This is very similar. So what, see, it's a property wrapper again. Okay, remember these kind of attributes now. These are actually property wrapper. They have inside code. So basically SwiftUI take care of all this thing, but they given you some wrapper. They give you some abstraction. You don't need to take care of all this thing. We will take care. You just use this, provide an attribute, pass the data, then we will take care of it. Okay, how this behavior works internally. Okay. So yeah, it's a property wrapper to share data across multiple views. Okay, there is not like a, yeah, it is basically used across the app also you can use, across the hierarchy also you can use. It's like that. So in both the context it is useful. Okay? So works best when many child views need access to the same data. This is the basically the best example for the environment objects. So I will give you one example here. They here also in the docs there is an example. The child hierarchy we have. See this one I'm taking. See this one. So suppose you have parent view, view one you can say, in which view B is there, then view C is there, then view D is there. Okay, something like that. So you have a child view hierarchy basically. So you want basically one data from view A to view D you want to pass. Again, here view is basically in UI kit you can say view controller or a screen. Okay. So your one parent screen or one main screen, you can say, or one home or dashboard. Then you're going to one detail screen, then again one more detail screen inside that, then one more. So it's like the hierarchy of four view controllers. It's like a four view hierarchy. Okay. So from first screen, you want to pass the data to the last screen. What you can do, you can even pass through dependency injection. We normally in view controller, what we do, we pass the data through dependency injection, right? We pass the data from either view controller property itself or through view model, or like, again, I'm saying in the context of dependency injection. You can do that, but again, it's not a best approach, right? Unnecessary, you need to create a property and pass the data. Again, there are some cases where actually this view B and view C doesn't require that data. Only view D actually wants that data. So basically, I'm saying the first screen passing some data, but that second, third is doesn't want that data, but directly fourth screen actually using that data. That also the case. So unnecessary view, matlab second and third is holding that data, and unnecessary you're creating a property and passing the data, and again extra code you are writing and extra variables you are creating, right? Extra properties. So this is basically all these things are addressing through environment objects. So let's start with this again, the basic example. So this C, why do we need it? You don't pass data like this. I'm talking in this context. You getting my point? In SwiftUI, again, you can relate to this in UIKit also. We used to pass this, right? Parent to child, child to again child kind of thing. See like this. So parent view have this some data, then again you're passing the same data in child view. Then again you're passing to the grandchild view, like a hierarchy, I can say. First, second, third hierarchy. So to avoid this thing, we have a property wrapper environment object. Okay?
So this gets messy actually and repetitive, unnecessary holding the data, messy code. So environment object solve this by injecting data at the top and reading it wherever needed. So it's really good. So at the parent view, the root view, you actually defining that environment object, and whenever any child view wants that or to use or want to access this thing, they can easily access it. How they access? Let's see this. Okay, so how to use environment objects. So again, you again create a one data model, share data model basically, which we actually want to use as an you can say data. Okay. So we here actually theme object, there is an example. So you need to confirm this with an observable object and publish property. Okay, whatever. This is a basic boilerplate thing. Then in the root view, you want to make sure the entire app have an access of this theme object. Okay, entire app. Okay, that's why there's an example of the root view. So again, in the UI kit, you can do this through UI window. You have, remember, in app delegate, you can configure the root view controller, or basically a first screen. Whenever the app launches, the first screen you can configure through it there. So either programmatically you can configure it from there, or while you're using storyboard approach, in the main storyboard it is configured, right? It's initial view controller, right? Remember that thing? Same thing happening here. Remember that? Yeah. So other people, I expect कि सब लोग थोड़ा सा active रहो और you can confirm this one, right? Acknowledge. Yeah. So thanks. So basically, the same thing in UI kit we used to do, right? कि हम लोग बताते थे उसको कि whenever app launch, whichever the first screen, first view controller, same thing I'm doing it here. So in this window group, you basically defining okay, my content view is my first screen basically. I can even comment it here. So what I'm doing it here, this is my basically first screen, I can say, or first view. Here again, don't confuse. In Swift UI, basically the view is basically the screen, right? Kind of, you can say, right? So here I'm basically telling the Swift UI or my app, this is my first view whenever my app launches. This is my first screen, first view, right? So like that. Okay. So in Swift UI, we doing like this, which again it's similar to your this particular UI kit में जो हम करते थे, app delegate और UI window में key root वाला हम लोग define करते थे. Same things happening here. Okay. So now again back to the environment object. So what is happening? We have one model and we want कि ये जो object है theme, it should be accessible in the entire app. So what we will do, there is one modifier, environment modifier you can say. Okay, let me show you. There is a name of modifier. Okay, here it's not mentioned. Cool. So it's basically a modifier. So that you can use and you can pass that particular data as an injecting this data. So in content view, I can directly passing this theme data. And whenever this theme gets changed again, it's again accessible entire hierarchy, entire app. Okay. So let's see. In any child view, you will go. So this is my child view basically, right? Because on the app level, I mentioned this thing. Now see in the child view, what is happening? In child view, you need to define it as an environment object. So what it's done actually, मतलब आपने environment object कहीं से तो pass किया है, parent के through और app hierarchy के through, right? ठीक है? Now whichever child who wants to use here, like this is my child view basically, content view. You can say any random name, ABCD view, ठीक है? Anything. You need to define this property environment object. So basically that is responsible to collect that data and to again to actually hold that value basically. ठीक है? कहीं तो आपको वैल्यू होल्ड करनी पड़ेगी जिस जहां पे आप यूज करना चाहते हो थ्रू एनी प्रॉपर्टी यू नीड टू यूज दैट थिंग. तो यहाँ पे वही हो रहा है बेसिकली. तो यू आर पासिंग दिस पर्टिकुलर environment object from your parent side, from your root side, and whenever you want to use in the child, whichever child which actually you want to use, you just define this property simply like this attribute, and then you can use it directly. Okay, getting my point? So what is happening here in this child view, you're defining this property, and now this theme you can use it directly here. See, you're directly using it here. ठीक है, अब इसके साथ आप कुछ भी खेलो, एनीथिंग यू कैन डू. अगेन दिस थीम इज अ कस्टम ऑब्जेक्ट. ओके, ये कोई एप्पल का क्लास है, प्रॉपर्टी नहीं है, राइट? वी एक्चुअली डिफाइन दिस थीम थिंग. ठीक है, तो यहाँ पे आप कुछ भी वैल्यूज पास कर सकते हो. एनी रैंडम वैल्यूज यू कैन पास, एनी टाइप ऑफ वैल्यू, एनी टाइप ऑफ डेटा, एनी कस्टम डाटा, राइट? एनी कस्टम डेटा. ठीक है, आई होप यू गेटिंग द पॉइंट. So it's nothing but your global properties you can say, or similar to user default, or similar to your singleton shared and all that thing. मतलब again singleton is a wrong word here, but I'm just relating you. UI kit में हम लोग ऐसा करते थे, right? कि कुछ ग्लोबल डेटा अगर हमें एक्सेस देना है तो हम ग्लोबल वेरिएबल प्रॉपर्टीज बना देते थे, या यूजर डिफॉल्ट में भी यूज टू डिफाइन दीज थिंग्स. यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो.
एंड अगेन इन पेरेंट चाइल्ड हायरार्की में ये इजीली एक्सेसिबल होगा सारे चाइल्ड को, ठीक है, अननेसेसरी यू डोंट नीड टू पास द डेटा अगेन एंड अगेन। आई होप यू गेटिंग अ पॉइंट। अभी हम एग्जांपल में जाएंगे इन द एक्सकोड, बट क्लियर हो रहा है ये चीज? यू कैन थम्स अप। ठीक है, इट्स रियली वेरी इजी, सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच, एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंटरव्यू पर्सपेक्टिव ऑल्सो। ठीक है, तो सिंपली पूछेंगे तो एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट को आप रिलेट करो ग्लोबल ग्लोबल प्रॉपर्टीज से काइंड ऑफ, और यूजर डिफॉल्ट से, और सिंपली आपको एक दिस लाइक फीचर है, ये एक तरह का पावर प्रोवाइड कर रहा है आपको टू गेट ऑल योर चाइल्ड डेटा, ऑल योर चाइल्ड व्यूज एक्चुअली डायरेक्टली एक्सेस टू दैट डेटा। ठीक है, अननेसेसरी पास करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली डूइंग लाइक दिस। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये हमने एग्जांपल देख लिया एग्जिट में। तो व्हाट, हाँ, हाउ इट वर्क्स, सी। तो वेनेवर आप जब एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हो तो वो एक्चुअली उस टाइप का ऑब्जेक्ट ढूंढता है, आपका जो चाइल्ड व्यू वो प्रॉपर्टी आप बना ही दे रहे हो, और उसके अकॉर्डिंगली वो मैप कर लेता है वैल्यू। ठीक है, अब इसमें एक और कंडीशन है कि मान लो मल्टीपल प्रॉपर्टीज होंगी या अलग अलग डेटा टाइप होगा या सेम डेटा टाइप होगा, तो क्या होगा, देयर आर सम केसेस, विल सी दिस। ठीक है, अभी तो हमारा एक ही केस था, एक ही प्रॉपर्टी है, एक ही टाइप का है, तो दैट इज फाइन। बट सपोज इफ यू हैव मल्टीपल, देन देयर इज अ प्रायोरिटी वाला थिंग हियर। ठीक है, उस पर मैं आता हूँ। सी अगेन, जो मैंने हायरार्की वाला आपको एग्जांपल बताया था, फर्स्ट सी दिस। तो व्यू ए बी सी डी में पास करने की जरूरत नहीं है, आप व्यू ए में पास कर दो एंड डायरेक्टली व्यू डी में यू कैन डायरेक्टली यूज। ठीक है, दिस इज रियली गुड एग्जांपल, इसको आप इंटरव्यू में भी दे सकते हो एग्जांपल को। इससे आपका सिंपली एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट का बेसिक फंडामेंटल इज क्लियर। ठीक है, कि again in my parent or in my main view I can define this thing, and my directly my child view again doesn't matter कि वो my direct child है या मेरा वो second third fourth child वाला hierarchy पे है, right? Here basically view D, view A का direct child नहीं है, right? It's basically hierarchy वाला child है, right? Second third fourth वाला hierarchy। पर मुझे अगेन डेटा पास करने की जरूरत नहीं, बार बार एक बार पास कर दिया, फिर जब भी मुझे यूज करना है हायरार्की में, अगर वो हायरार्की का पार्ट है, राइट, तो मैं इसको डायरेक्टली ऐसे यूज कर सकता हूँ, जो हमने अभी ऊपर भी देखा था, राइट? क्लियर हो रहा है चीज? तो बेस्ट एग्जांपल है ये, मतलब यू कैन गिव दिस एग्जांपल इन इंटरव्यूज आल्सो, और टू अंडरस्टैंड पर्सनली आपको खुद को समझने के लिए भी ये बढ़िया एग्जांपल है। ठीक है, हाँ, अब व्हाट इफ यू हैव मल्टीपल एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट्स? ठीक है, जिसमें मैंने बोला कि मल्टीपल भी हो सकते हैं, तो एक्चुअली कैसे वर्क करता है एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट? वर्ड्स लाइक योर डेटा टाइप। ठीक है, डेटा टाइप का खेल है यहाँ पे सारा। तो आपने ऑलरेडी थीम को डिफाइन किया हुआ है एक टाइप का, तो जब भी आप ये चाइल्ड व्यू में जाओगे तो वहां पे प्रायोरिटी वाला सीन आएगा। आपने दो एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट यहाँ पे एट टाइम पास कर दिए। ठीक है, तो जब एक्चुअल में जाओगे तो ये कैसे करता है, जो फर्स्ट आप मेंशन करते हो उसको प्रायोरिटी देता है, वो सेकंड वाले को इग्नोर करता है अगर सेम टाइप का है तो। ठीक है, इस पे भी हम आगे देख सकते हैं चीजें, और अभी के लिए अब इतना समझो, अगर आप मल्टीपल एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट्स पास कर रहे हो सेम डेटा टाइप के, अगर डिफरेंट डेटा टाइप के तो दिक्कत ही नहीं है, फिर वो प्रायोरिटी वाला सही नहीं आएगा। पर जब सेम डेटा टाइप के मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं, एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट्स, तो प्रायोरिटी वाला सीन आएगा। वहां पे फिर वो एक को कंसिडर करेगा एट ए टाइम। तो किसको कंसिडर करेगा? जो कि पहला आपने डिफाइन किया है उसको कंसिडर करेगा, सेकंड वाले को इग्नोर करता है वो। ठीक है, तो अगर आपको चाहिए कि आप सबको कंसिडर करो और सबका अलग अलग यूज करना है आपको, तो मेक श्योर कि आप अलग अलग टाइप का डिफाइन कर दो। फिर देखो यहाँ पे दिया हुआ भी वो पॉइंट मैंने, use different types if you want multiple environment objects. So if you really want कि multiple environment object you want to use, make sure कि every environment object is a different data type. पर सेम डेटा टाइप का दोगे तो ऑब्वियसली प्रायोरिटी वाला सीन आएगा, कॉन्फ्लिक्ट आएगा सेम टाइप पे। फिर आपको अगेन प्रायोरिटी डिफाइन करनी होगी कि कब आपको कौन सा यूज करना है, दैट यू नीड टू कॉन्फिगर। ठीक है, आई होप यू गेटिंग दिस पॉइंट। तो इस तरीके से है ये, इसके बीच में बस अगेन फिर की डिफरेंस दी है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन को हमने काइंड ऑफ बाईपास कर दिया, राइट? नो नीड टू पास द डेटा अगेन एंड अगेन, जो कि सिंपली यहाँ से हो रही चीज है, और ऑटोमेटिकली अपडेट्स भी कर देता है ये यूआई को, बाइंड हो जाता है। एक्चुअली बेसिकली क्या हो रहा है, अगर आप सॉफ्टवेयर में देखोगे चीजें कैसे वर्क कर रही है, हाउ थिंग्स आर वर्किंग, सिंपली यू आर बेसिकली मैपिंग द डेटा, बाइंडिंग द डेटा, एंड इट बेसिकली अपडेटिंग योर यूआई। ठीक है, इंटेंशनली या मैनुअली आपको नहीं करना पड़ रहा है वो चीज, राइट? नो नीड टू डू एनीथिंग मैनुअली और इंटेंशनली, और यू कैन से अननेसेसरी वो कोड नहीं लिखना पड़ रहा है हमें, ये सब कुछ यूआई किट में करना पड़ता था, राइट? अगेन गो बैक टू द ओल्ड कोड, जिसमें आप कंप्लीशन हैंडलर, क्लोजर हैंडलर, और आई कैन से क्लोजर्स के थ्रू करते थे, और भी तरीके, राइट? नोटिफिकेशन ऑब्जर्वर से कर सकते हो, आरएक्सओप से करते थे। अगेन आरएक्सओप का एग्जांपल मैं नहीं ले रहा हूँ यहाँ पे, उसी का एक काइंड ऑफ रिप्लेसमेंट है यहाँ पे ये जो चीजें हो रही है। बट अगर हम आरएक्सओप की बात ना करें, रिएक्टिव प्रोग्रामिंग हटा दें, तो फिर आप बिना रिएक्टिव प्रोग्रामिंग कैसे करते थे, राइट? खुद से मैनुअली आपको लिखना पड़ता था ना वो चीज, वो कोड, क्योंकि ये जब चेंज होगा तो ये कर देना और ये कर देना। वो हम डिक्लेरेटिव और इम्पेरेटिव, मतलब इम्पेरेटिव में काइंड ऑफ लिखते थे,
अब ये सारी चीजें आपकी यहाँ पे डिफाइंड है, सब स्टेट से मेंटेन्ड है। जब भी कुछ चेंज होगा आपका व्यू अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट कर देगा, राइट? इट्स रियली गुड थिंग। तो मैंने इसे फर्स्ट सेशन में ही बोला था, एप्पल स्विफ्ट यूआई को लेकर आया टू मेक थिंग्स इजियर, ठीक है, नॉट मेक थिंग्स हार्डर, टू मेक थिंग्स इजियर, स्मूथर, क्लीनर एंड मोर स्ट्रेट फॉरवर्ड थिंग्स, ठीक है। अननेसेसरी कॉम्प्लेक्स कोड को रिमूव किया है। एंड यूआई किट जो हम करते थे, अगेन यूआई किट इज नॉट अ बैड थिंग और नॉट अगेन अभी तक ऑब्सोल्यूट नहीं किया है या उसको डेप्रिकेटेड नहीं किया है, तो ऐसा मत समझना। पर मैं बस ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि स्विफ्ट यूआई में चीजें और बेटर करने के ट्राई किया एप्पल ने, जो कि यूआई किट में नहीं होती थी या वहां नहीं कर सकते फंडामेंटली, वहां पे चीजें अलग है, यहाँ पे चीजें अलग है फंडामेंटली, अगेन राइट। यहाँ पे स्ट्रक्स पे खेल रहे हैं सारा चीजें, वहां क्लास पे खेल रहे थे। और अगेन ये डिक्लेरेटिव है, वो इंपेरेटिव है, तो वो फंडामेंटली काफी डिफरेंसेस हैं दोनों में। बट द पॉइंट इज कि मेजरली एप्पल ने वो अप्रोच ट्राई करी है और यही चीज आपको फ्लटर में और जेटपैक कंपोज में भी दिखेगी। अगेन मैं एक बर्ड मतलब एक बिग पिक्चर व्यू में बोल रहा हूँ कि जो अदर ये भी सब डिक्लेरेटिव है, राइट? फ्लटर अगर आप हो, आपने अगर फ्लटर का कोड देखा है तो सिमिलर दिखेगा थोड़ा सा, स्विफ्ट और फ्लटर आपको सेम फील आएंगे, कोड वाइज कहूँ मैं या एक अप्रोच वाइज कहूँ तो मैं, ठीक है। सिमिलरली जेटपैक कंपोज का कोड आप देख सकते हो, ये सब डिक्लेरेटिव है, ठीक है, राइट? आई होप आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा ये चीज। तो अगेन बैक टू द दिस थिंग, तो हम लोग मतलब मेजरली इंटेंशन यही रहा है एप्पल का कि चीजें और बेटर करनी है, उसी के लिए इन्होंने ये प्रॉपर्टी रैपर्स दे दी है, इस तरह की प्रॉपर्टीज फंक्शनलिटीज दी है कि हम लोगों को ये अननेसेसरी हेडेक ना लेना पड़े, हमको ये चीजें टेक केयर ना करना पड़े, राइट? तो थिंग्स आर ऑटोमेटिकली मैनेजिंग, ठीक है, समझ पा रहे इस बात को? तो आप डेटा शेयर कर रहे हो मल्टीपल व्यूज के बीच में, मैनी व्यूज, और बॉयलर प्लेट की जरूरत नहीं पड़ रही है, और एक ग्लोबल स्टेट मेंटेन हो रहा है। जैसे मैंने बोला, अगेन हम ये करते थे ग्लोबल वेरिएबल्स के थ्रू, शेयर्ड वेरिएबल्स के थ्रू और यूजर डिफॉल्ट्स के थ्रू, जो अभी भी हम करते हैं अपने कोड बेस में, जो लोग का पूरा अभी भी हम लोग यूआई किट यूज कर रहे हैं, राइट? उसमें ऐसे ही कर रहे हैं काइंड ऑफ, राइट? वही चीजें आपकी इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट बाय मतलब वो सारा काम हम नहीं करना पड़ रहा है इसमें, राइट? तो ये चीज है, ठीक है। इसके एग्जाम्पल पे हम आते हैं, पर आई होप ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। थम्स अप कर सकते हो, यस रिसीव है। एंड हेलो। इसके आपने कुछ हाँ हाँ, आवाज आ रहा है क्या? आ रहा हाँ है। हाँ, मैं ये पूछ रहा था कि ये यहाँ पे हम जब रेफर कर रहे हैं पेरेंट और चाइल्ड व्यू, तो ये मतलब कैसे कर रहे हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर यूआई किट में हम एक व्यू कंट्रोलर के अंदर एक व्यू बना रहा हूँ, मैं उसके अंदर दो बटन बना रहा हूँ, तो जो व्यू हाँ बना रहा हूँ वो पेरेंट होगा और वो जो दो अंदर वाले रहेंगे वो चाइल्ड होगा, ठीक है? तो यहाँ पे राइट, भी वैसा ही कॉन्सेप्ट है स्क्रीन के वैसा ही है, अंदर। वैसा ही है। हाँ वैसा ही है। देखो मैंने इसलिए आपको पहले ही वो बोला बात कि यहाँ पे व्यू मतलब वो व्यू कंट्रोलर ही है, ठीक है। यूआई किट का व्यू कंट्रोलर, यहाँ पे व्यू होता है वो। तो बेसिकली आप पैरेंट कंट्रोलर बना रहे हो, उसके अंदर दो चाइल्ड बना दिया आपने मान लो, और आप नेविगेट कर रहे हो आगे, या आप इंटरनली भी उसको दिखा रहे हो, ऐसा भी इंटरनल तो नहीं कहूंगा। व्यू कंट्रोलर बेसिकली आप आधा प्रेजेंट करोगे या आगे दिखाओगे, राइट, अगली स्क्रीन पे। वैसे ही यहाँ पे सॉफ्टवेयर में भी वही चीज हो रही है। आपका मेन व्यू है जिसको हम पेरेंट व्यू कह रहे हैं, और उसके अंदर चाइल्ड व्यूज है। और अगेन जैसे हमने देखा वो व्यू ए बी सी डी वाला हायरार्की, तो पेरेंट व्यू से डायरेक्टली आपको व्यू सी या डी में कुछ एक्सेस करना है, आप एनवायरमेंट उसको एक बार इंटीग्रेट कर दो, एक बार व्यू ए से इंसर्ट करो एज एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट, डायरेक्टली सी या डी में यूज कर सकते हो, ठीक है। उस तरीके से वर्क कर रहा है वो। हाँ हाँ, तो उस पे ही मेरा क्वेश्चन था, ये हम्म, ए टू डी जो हम बात कर रहे हैं, तो अगर यूआई हम्म। किट में हम उसको करस्पॉन्डिंग देखें तो वो एक ही व्यू कंट्रोलर के अंदर एक व्यू है, फिर उसके नहीं नहीं अंदर नहीं फिर नहीं। नहीं 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 नहीं, अलग अलग व्यू कंट्रोलर्स हैं ये, ऐसा समझो, ठीक है। ओके। हम्म। आप वो व्यू से कंफ्यूज हो रहे हो। अगेन मैं बता दूं, अगेन आई एम क्लियरिंग दिस थिंग। स्विफ्ट पीआई का व्यू इज इक्वल टू व्यू कंट्रोलर ऑफ योर यूआई किट, ठीक है। तो ये जो व्यू एबीसीडी की बात हो रही है, इसका मतलब चार स्क्रीन है, मैं ऐसा कह रहा हूँ, चार स्क्रीन है अलग अलग, ठीक है। तो स्क्रीन 1 से आप 2 पे जा रहे हो, 2 से 3, 3 से 4, बट आपको अगेन बार बार डेटा पास करना पड़ेगा, राइट? अगर हम यूआई किट के कंटेक्स्ट में देखें, डेटा हम्म। पास करते हो अब वो डिपेंड करता है आप कैसे पास कर रहे हो। अब तरीके बहुत है करने के, बट नॉर्मली हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू करते हैं, यह जो बेस्ट अप्रोच है काइंड ऑफ। वैसे ही यहाँ पे सॉफ्टवेयर में भी आप चाहो तो वैसे कर सकते हो, बट उसी को अननेसेसरी मतलब उसको और बेटर अप्रोच के लिए एप्पल ने इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट दे दिया आपको, ठीक है। तो आप चाहो तो अगेन जैसे मैंने स्टार्टिंग में वो दिखाया था एग्जाम्पल, पेरेंट से चाइल्ड, चाइल्ड से ग्रैंड चाइल्ड में हम कर सकते हैं चाहे तो, बट जरूरत नहीं है, इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट का यूज करके आप वो चीजें बाईपास कर सकते हो। तो मोर क्लीनर कोड हो जाएगा और अननेसेसरी बॉयलर प्लेट कोड नहीं लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये जो मैं आपको यहाँ दिखा रहा था, ये चीज स्टार्टिंग में पेरेंट चाइल्ड, ये वाला ग्रैंड चाइल्ड, ये वाला चीज, राइट। तो ये आप सॉफ्टवेयर में भी कर सकते हो आप चाहो तो, बट अगेन इसकी जरूरत नहीं है।
इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट से ही सारा आपका बाईपास हो जाएगा। तो अननेसेसरी आपको एक्स्ट्रा प्रॉपर्टीज बनाने की जरूरत नहीं है, अननेसेसरी आपको ये सारा डेटा बार बार पास करने की जरूरत नहीं है, ये सारा चीज आपका इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट हैंडल कर रहा है। हाँ कह सकते हो सूरज, ये इट्स लाइक द ग्लोबल स्टेट, बट अगेन अब मैं थोड़ा सा गलत होगा वो कहना एकदम, काइंड ऑफ कह रहा हूँ मैं, अगेन इट्स नॉट डायरेक्टली ग्लोबल स्टेट, बट हाँ ये है कि एक हायरार्की में आप डेटा को ग्लोबली मेंटेन हो रहा है, पर ऐप वाइज भी मेंटेन कराना है तो आप ऐप लेवल पे दे रहे हो, जो हमने थीम वाला एग्जांपल देखा। पर मान लो अगर मुझे ऐप लेवल पे नहीं रखना है, जो कि ग्लोबल तो आपका ऐप लेवल पे हो गया राइट, तो वो ग्लोबल हो गया, बट मुझे उतना ग्लोबल नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मेरे व्यू हायरार्की में, अगर मेरा मान लो अगेन अगर अपना ऐप का एग्जांपल ले लो, कोई भी ऐप ले लो अपनी, लाइक जोमेटो ले लो या बुक माई शो ले लो या अमेजोन ले लो, तो मुझे एक फ्लो में मेरा डेटा मेंटेन करना है कि मैं एक बार जब सर्च करता हूँ मेरे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं ई कॉमर्स में, और उसमें जब मैं किसी डिटेल स्क्रीन पे जा रहा हूँ वहां से लेके मुझे पेमेंट के चेकआउट तक उतना मेंटेन करना है मेरा डेटा, तो मैं वहां पे भी इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट यूज कर सकता हूँ राइट। तो मैं अपने डिटेल स्क्रीन पे एक ऑब्जेक्ट वहां से इंसर्ट करूंगा या मेरे लिस्ट कंट्रोलर से, मतलब लिस्ट व्यू से, एंड देन वो ग्रेजुअली आपने एक बार एंटर कर दिया और फिर डायरेक्टली आप एंड वाली स्क्रीन पे भी कुछ यूज करना है जो कि आपकी पेमेंट वाली स्क्रीन होती है राइट, या ऑर्डर प्लेस या फाइनल ऑर्डर प्लेस करते हो, वहां पे भी आप काइंड ऑफ अपने प्रोडक्ट का कुछ डिटेल्स दिखा रहे हो राइट। तो तो वहां पे आप इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हो। इसको मैं ओवरऑल ग्लोबल नहीं कहूंगा, बट बेसिकली आप डिफाइन कर रहे हो आपको ओवरऑल ग्लोबल चाहिए या फिर स्पेसिफिक टू स्कोप वाइज चाहिए। हाँ काइंड ऑफ यू कैन से राइट सूरज, ठीक है। तो इट्स अप टू यू कि आपको ग्लोबली चाहिए या फिर बेस्ड ऑन पर्टिकुलर स्कोप के लिए चाहिए। हाँ यू कैन हैव मोर देन वन इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अंकिता आई ऑलरेडी मेंशन दैट थिंग, आपको डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स के इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट बनाने होंगे, तो उस तरीके से आपको मल्टीपल इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट्स आप यूज कर सकते हो। सेम डेटा टाइप के बना दोगे जैसे हमने अभी देखा इस डॉक में, तो वो प्रायोरिटी कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो उसमें जो फर्स्ट वाला होगा उसको वो कंसिडर करता है, जो फर्स्ट इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट पास करते हैं वो कंसिडर होता है, सेकंड वाले को इग्नोर कर देता है वो। अगर आपका इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट जो मल्टीपल है सारे सेम डेटा टाइप के हैं, सेम टाइप के हैं तो, बट अगर अलग अलग टाइप के तो दिक्कत ही नहीं है, फिर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है सच, ठीक है। तो वो चीज है, ये आप एग्जाम्पल खुद से एक बार ट्राई भी करोगे तो समझेगा। बट हाँ इतना ध्यान रखो, अगर मुझे मल्टीपल इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट यूज करने हैं तो मेक श्योर कि आप मल्टीपल सारे ऑब्जेक्ट को मतलब अलग अलग टाइप का ही डिफाइन करो। मेक श्योर टू डिफाइन डिफरेंट डेटा टाइप्स फॉर एवरी इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट। अननेसेसरी सेम का मत बनाओ जब तक सच में जरूरत नहीं है या ऐसा कोई आपका कंटेक्स्ट है तो, वरना उसको अवॉइड करो, ठीक है। कूल, तो लेट्स गो टू एक बेसिक एग्जांपल, उसके बाद हम, या थैंक यू, आई एम मूविंग टू द एक्सकोड, जस्ट अ मिनट। एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये चीजें थोड़ी सी मैं बता दूं, स्टार्टिंग में इट्स गेटिंग अ बिट कंफ्यूज क्योंकि पहली बार जो लोग देख रहे हैं सुन रहे हैं ये चीजें, बट इवेंचुअली मैं कहूंगा ये बहुत अगेन इजी है, एक बार आप थोड़ा सा हैंड्स ऑन कर लोगे। मेक श्योर अभी अगला सेशन हम लोग का मोस्टली ट्यूसडे वेडनेसडे रहेगा, 2 दिन का जो भी टाइम है आपके पास, आराम से आज का टाइम और कल परसों भी, मेक श्योर आप इसको थोड़ा हैंड्स ऑन करो, कंफर्टेबल हो जाओगे। इवेंचुअली जितना आप सॉफ्टवेयर में इन्वॉल्व होगे, इट्स रियली आपको बहुत ये चीजें इजी और स्मूथ लगने लगेंगी। फिर आपको ऐसे दिमाग में वो कंफ्यूजन नहीं आएंगे कि इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है भाई, ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्टेट ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, स्टेट बाइंडिंग क्या हो रहा है, कहाँ पे कौन सा यूज करना है, ये चीजें धीरे धीरे आपकी ना क्लियर होने लग जाएंगी। और ऑब्वियसली मैं कहूंगा हैंड्स ऑन करो, थ्योरेटिकली इतना ये चीज वर्क नहीं करती है, प्रैक्टिकली जितना हैंड्स ऑन करोगे उतनी चीजें, और खुद से करोगे वो भी, किसी और का कोड देख के नहीं होगा उतना वो, खुद से जब तक नहीं करोगे आप और थोड़ा खेलोगे नहीं तब तक ये चीजें थोड़ी सी डाउटफुल रहेगी दिमाग में कहीं ना कहीं। तो मेक श्योर आप खुद से थोड़ा सा प्रैक्टिस करो उस चीजों को लेकर, ठीक है। तो हाँ आई एम मूविंग टू, लेट मी शो माय स्क्रीन एंड टेस्ट, ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है हो तो मैं ओपन कर लेता हूँ एक बार, मैंने ओपन किया है ऑलरेडी, या ठीक है। यहाँ पे देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं अगेन एक काइंड ऑफ डेटा पास कर रहा हूँ इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट के थ्रू, आर्टिकल स्टोर। मैं आपको दिखा दूं पहले ये क्या है डेटा, इसमें कुछ भी नहीं है, मैंने एक डेटा मॉडल है मेरा एक तरीके का ये, और इसमें मैंने एक एरे मेंटेन किया है। आई होप मेरा स्क्रीन दिख रहा है, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, मैं पहले तो आपको रन करके दिखा देता हूँ, फिर हम लोग उसके कोड पे जाते हैं कि व्हाट वी आर डूइंग हियर एग्जैक्टली, ठीक है। नथिंग बट एक लिस्ट है बेसिकली, ठीक है। और उसमें क्लिक कर रहे हो तो अंदर आपका डेटा पास हो रहा है और वो आपको नहीं अंदर दिख रहा है। इस तरह के एग्जाम्पल हमने पहले भी देखे, और आज हम इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, इसलिए इस तरह का एग्जाम्पल ये बेसिक एग्जाम्पल है। और इसमें मैं और आइटम ऐड भी कर सकता हूँ, तो सी ऐड बटन दिया है मैंने ऊपर, ऐड करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो आर्टिकल नंबर ले लेगा। इसको मैंने कस्टम नहीं दिया अभी, मतलब चाहूँ तो मैं एक अलर्ट से नाम भी दे सकता हूँ फिर वो एंटर करवा सकता हूँ, पर वो सब काम हम नहीं किया अभी के लिए।
बट द पॉइंट इज कि आप रन टाइम पे इस लिस्ट को अपडेट कर रहे हो, ठीक है, ये पॉइंट समझ पा रहे हो, और चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो, पर अभी डिलीट वाला इनेबल नहीं है इसके अंदर, ठीक है, बट ये चीज क्लियर हो रही है। तो इनिशियली उतना डेटा है जितना ये पास हो रहा है, पर इसको आप चाहो तो रन टाइम पे जब अपडेट कर रहा हूं मैं, तो ये और डेटा ऐड करता जा रहा है और लिस्ट में दिख रहा है, और इसके अंदर में कोई क्लिक करूंगा तो ये डेटा प्रॉपर मैप्ड भी है, राइट। न्यू आर्टिकल, अब ये नया डेटा मैंने रन टाइम पे ऐड किया, लोकली तो नहीं था ये डेटा, राइट, रन टाइम पे ऐड किया और रन टाइम पे रिफ्लेक्ट भी कर गया वो, राइट, समझ रहे हो? तो ये चीज है। तो अब कोड में क्या हो रहा है, लेट्स सी देखते हैं इसमें एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट का क्या रोल है, यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले अगेन जो हमारा डेटा है वो बेसिकली यहाँ से मेंटेन हो रहा है, ये आर्टिकल्स ही है जो पूरा उस लिस्ट पे एक्चुअली हम लोग शो कर रहे हैं, राइट, दिस आर्टिकल्स, ये जो मेन चीज है यहाँ पे मैं बोलूंगा दिस इज आवर मेन डेटा विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लिस्ट व्यू, ठीक है। ऑब्वियसली वो देख के आप समझ पा रहे होंगे, पूरा जो मेरा लिस्ट दिख रहा है वो इससे पूरा नेविगेट मतलब हो रहा है, होल्ड यहाँ पे हो रहा है सारा डेटा, ये कंट्रोल कर रहा है कि लिस्ट क्या दिखेगा, राइट, ये क्लियर होगा आपको। तो अब क्या कर रहे हैं हम लोग, हमने एक ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट, अगेन वो प्रोटोकॉल कंफर्म करना पड़ता है, पब्लिश में डाल दिया। अब आ जाओ आप इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट पे, तो यहाँ पे हम लोग ये देखो इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट डिफाइन किया हुआ और लिस्ट व्यू में हम लोग ये पास कर रहे हैं, और आपको एक मिनट में और दिखा रहा हूँ लिस्ट, ठीक है, दिस थिंग। तो अब यहाँ पे एक्चुअली अगेन यहाँ पे ऐप लेवल पे कर रहा हूँ मैं, आप चाहो तो अगेन इट्स अप टू यू, आप चाहो तो उसको मैं डिटेल स्क्रीन पे लेके आ जाऊंगा, यहाँ से हटा के मैं डिटेल स्क्रीन पे लेके आ सकता हूँ, पर जानबूझ के मैंने ऐप लेवल का एग्जांपल दिया आपको। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, व्हाट आई एम डूइंग अगेन, ये आपका वो है जो मैंने बोला था ना, दिस इज सिमिलर टू, कमेंट कर देता हूँ, दिस इज नथिंग बट सिमिलर टू योर यूआई किट का जो यूआई विंडो रूट कंट्रोलर होता है वो है ये चीज, ठीक है, कंफ्यूज मत होना इससे। यूआई विंडो रूट कंट्रोलर, रूट कह लो या की कंट्रोलर कह लो, फर्स्ट वाला जो स्क्रीन होता है, ठीक है, वो चीज है ये। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बेसिकली, ये मेरा ऐप डेली मतलब मेन ऐप का यहाँ से इनिशिएट होता है, यहाँ पे मैं इसको बता रहा हूँ कि भाई मेरा फर्स्ट स्क्रीन ये है काइंड ऑफ आर्टिकल लिस्ट व्यू। तो ओपनिंग पे आप देख रहे हो ना लिस्ट व्यू खोल रही है, राइट, दिस इज माई फर्स्ट स्क्रीन, और उसमें ही मैं इन्वायरमेंट ऑब्जेक्ट ऐसा इंसर्ट कर रहा हूँ, ठीक है बेसिकली, और ये इंसर्ट कर रहा हूँ तो ये डिफाइन हो रहा है यहाँ पे, तो ये डेटा यहाँ पे एक्चुअली पास हो रहा है बेसिकली। तो ये डेटा के अंदर क्या है, डेटा के अंदर हमने देखा इनिशियली हमने 3 एरे बनाए, इसमें मैं चाहूँ तो 4 डाल दूं इनिशियली, तो 4 हो जाएंगे, राइट, मतलब हम लोग कुछ भी रैंडम यहाँ पे डाल सकते हैं, मैं एक रैंडम ऑब्जेक्ट लिख रहा हूँ पे, रैंडम ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग, आप ऐप लेवल पे आपने डिफाइन कर दिया कि ये मेरा एक एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट है। अब पूरी ऐप के अंदर मतलब इन माय एंटायर ऐप, किसी भी स्क्रीन को किसी भी व्यू को मतलब एनी स्क्रीन एनी व्यू वांट्स टू एक्सेस दिस डेटा, दे कैन सिंपली एक्सेस इट। कैसे करेंगी, चलो जल्द देखते हैं आर्टिकल इश्यू में, चलो वो कैसे यूज कर रहा है, देखो इनसाइड, ये चाइल्ड व्यू हो गया काइंड ऑफ, मेन व्यू का चाइल्ड व्यू हुआ काइंड ऑफ, तो ये यहाँ पे कैसे यूज कर रहा है, और अगेन आगे भी मुझे यूज करना है डिटेल स्क्रीन में कहीं भी, तो मैं कर सकता हूँ बिंदास, राइट, आई कैन डू दैट अगर मुझे जरूरत है तो सच में, राइट। तो व्हाट इज डूइंग हियर, मुझे ये प्रॉपर्टी डिफाइन करना पड़ेगा जो हमने देखा डॉक के अंदर भी। तो जब भी किसी भी चाइल्ड व्यू को यूज करना है, यू नीड टू डिफाइन योर एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी, और फिर इस ऑब्जेक्ट को आप बिंदास यूज करो। ये देखो इस ऑब्जेक्ट को मैं यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये देखो मैं इसका फॉर ईच में घुमा के लिस्ट भी बना रहा हूँ, और उसके अलावा और कुछ कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे देखो अपेंड भी कर रहा हूँ, सी आर्टिकल में अपेंड भी कर रहा हूँ, और अगेन आप देख पा रहे होंगे ये एक ही रेफरेंस में सारा खेल हो रहा है। तो बेसिकली अगेन इसको ऐसे रिलेट करो, आपने क्लास की प्रॉपर्टी बना दी और उसी प्रॉपर्टी को सारे लोग एक्सेस कर रहे हैं, रेफरेंस टाइप वाले कंटेक्स्ट में समझ सकते हो उस चीज को, राइट। तो जब यहाँ पे हम न्यू आर्टिकल कर रहे हैं ना, ये न्यू ऐड कर रहे हैं, तो बेसिकली क्या कर रहा है, ये ऐड के क्लिक पे न्यू आर्टिकल करके काउंट वाले से ऐड कर रहा है। मैं चाहूँ तो इसको मतलब स्टार्ट कर सकता हूँ मैं काउंट, ओके 10-11 से जा रहा है, ठीक है, दैट्स फाइन। और इस न्यू आर्टिकल को मैं ऐसा कर सकता हूँ कि दिस इज माय कस्टम न्यू समथिंग, कुछ भी ऐसा, मतलब मैं आपको जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ से चीजें वर्क कर रही है, कस्टम न्यू आर्टिकल, ठीक है, एक बार रन कर लो इसको। तो इस बात को आप समझ पा रहे हो, ये बहुत सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ भी ऐसा कंफ्यूजिंग नहीं है। अब देखो 4 हमने डिफाइन कर दिए थे यहाँ पे 4 डिफाइंड है, तो इनिशियली 4 दिख रहे हैं यहाँ पे, रैंडम ऑब्जेक्ट मैंने आपके सामने एंटर किया, और जब भी मैं ऐड करूंगा तो अब नाम ऐसा कुछ आना चाहिए, राइट, कस्टम न्यू आर्टिकल, और उसका काउंट नंबर जो भी है आगे का सीरियल नंबर बेसिकली, राइट, कस्टम न्यू आर्टिकल 5 6 7 जो भी है, ठीक है। इस तरीके से जब भी आप इस लिस्ट में नेविगेशन लिंक या नेविगेशन ऑलरेडी हम देख चुके हैं, राइट, शिफ्ट में,
तो नेविगेशन लिंक इज नथिंग बट वो उसको पूरा एक लिंकेबल बना देता है। जब भी आप इस पे क्लिक करोगे तो क्लिक होके वो ये नेविगेशन लिंक है पूरा आपका जो लिस्ट का जो अंदर का आइटम है बेसिकली, राइट। इट्स काइंड ऑफ योर टेबल व्यू का सेल, और उस पर डिट सेलेक्ट पे कॉल जा रहा है, ठीक है। उस तरीके से ये वर्क कर रहा है। और उसके अंदर उन्होंने टेक्स्ट रखा, आप चाहो तो उसके अंदर और भी चीजें डाल दो, ठीक है, आपके ऊपर है, ऐसा नहीं है। यू कैन डू एनीथिंग हियर, यहाँ पे आपको कुछ भी ऐसा करना है तो यू कैन डू। ये बटन ना जाके मैं इसको एक टेक्स्ट ही करता हूँ, और इसमें मैं कुछ भी कर सकता हूँ। अच्छा मुझे और भी कुछ देना है तो न्यू लेवल, ऐसा कुछ भी, मतलब मैं रैंडम जो सबको बता रहा हूँ। तो अब मैं अगर अपने चाइल्ड में जाऊंगा तो 2 लेवल दिखने लग जाएगी बेसिकली, ठीक है। समझ पा रहे इस बात को आप? तो सॉरी, ये मैंने लिस्ट में एडिट कर दिया, ओके सॉरी सॉरी, मुझे यहाँ पे करना था। अब यहाँ की बात कर रहा हूँ, समथिंग लाइक दिस, राइट। न्यू लेवल यहाँ से हटा सकते हैं, यहाँ मैं कुछ और भी दे सकता हूँ। मान लो मुझे आर्टिकल रिलेटेड ही यहाँ पे कुछ काउंट वाउंट भी दिखाना है तो आई कैन डू दैट, राइट। आर्टिकल डॉट काउंट, ठीक है, समथिंग लाइक दिस, जिसमें मैं टोटल नंबर ऑफ वो दिखा दूं, इस तरीके से कुछ भी, ठीक है। लेट्स सी, एक बार रन करते हैं इसको। ओके, इसको मुझे एज देना पड़ेगा, ठीक है। अभी देखो, अभी देखोगे आप हर के पास में उसका काउंट दिख रहा है। अभी किसका काउंट है पता है? अच्छा कोई बताओ, ये क्यू 1433, आई होप आप समझ गए होंगे। ये किसका काउंट दिख रहा है? आर्टिकल्स का काउंट नहीं है, ये आर्टिकल का काउंट है। तो कौन सा काउंट होगा ये? कोई बताना चाहेगा? एनीवन? ये काउंट कौन सा काउंट है? कोई आंसर करेगा इस चीज को? एनीवन? नहीं समझा ये चीज? ये काउंट कहाँ से आ रहा है? क्यों ये 14, 33, 27, 13 आ रहा है? कैरेक्टर काउंट, कैरेक्टर काउंट, करेक्ट आंसर। आपको मिलते हैं 7 करोड़। तो समझ पा रहे हो इस बात को? क्यों हुआ ऐसा? ठीक है, क्योंकि मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने आर्टिकल का काउंट करा है। तो क्या किया मैंने, एक्चुअली मैंने इसका काउंट करना चाहिए था अगर आपको आर्टिकल्स का काउंट चाहिए था तो। पर मैंने यहाँ पे क्या किया, लिस्ट के अंदर जाके मैंने इस आर्टिकल, अभी आर्टिकल जो नथिंग और एक स्ट्रिंग है ना, तो स्ट्रिंग का काउंट तो कैरेक्टर का काउंट ही होगा, राइट। ये आर्टिकल क्या है, यहाँ पे देखो नीचे, ये आर्टिकल एक स्ट्रिंग आ रहे हैं, राइट। मतलब एक आर्टिकल मतलब एक ही एलिमेंट, राइट। इसका काउंट क्या होगा, वो कैरेक्टर का काउंट देगा आपको, जो कि वो दे भी रहा है, राइट। तो यहाँ देखोगे स्विफ्ट के बेसिस को अगर काउंट करोगे तो 14 कैरेक्टर्स का है। सिमिलरली सेकंड वाला 33 और ऐसे ही। और फिर मैं आगे और नए ऐड करता हूँ तो ये देखो सारे 20-20 के हैं, राइट। क्योंकि इसमें तो लेंथ चेंज नहीं हो रहा जब तक 10-11 आ जाएगा। तो ये देखो 10 पे 21 हो गया, राइट, क्योंकि अब एक इंटीजर बढ़ गया, राइट, काउंट में। तो समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आप कुछ भी खेल सकते हो। और यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो आई कैन, एक आप चाहो तो यहाँ पे ये पर्टिकुलरली स्टोर डॉट आर्टिकल्स काउंट भी कर सकते हो। तो फिर आपका ये हो जाएगा समथिंग लाइक दिस, स्टोर डॉट आर्टिकल डॉट काउंट। तो अब आपको प्रॉपर आर्टिकल का काउंट ही मिलेगा। और एक बार हम फिर से रन करेंगे इस चीज को। अब देखो आप, सबके सामने 4 है। जैसे मैं कुछ ऐड करता हूँ सबके सामने 5 आ गया, सबके सामने 6, 7, 8, 9, 10। चीज रिलेट हो रही है। और अभी मैं चाहूं तो मैं एक काम करूंगा, ये जो काउंट वेरिएबल है ना, इसको उठा के मैं स्टार्टिंग में डालता हूँ तो ये बेटर रहेगा। और यहाँ पे मैं एक कॉलन स्पेस दूंगा, और यहाँ पे, हाँ ठीक है, और यहाँ पे एक हाइफन लगा देंगे तो थोड़ा सा वो डिफरेंट, वरना हो गया साथ साथ में आ रहा है तो अच्छा नहीं दिख रहा है वो। अभी देखना, एक कुछ यहाँ पे ये हट जाएगा, यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो, ठीक है, अब देखना सबके सामने ये। अब जब मैं कुछ नया ऐड कर रहा हूँ तो ये देखो, राइट, अब ये 5 मैंने आगे ले लिया, और आर्टिकल नंबर भी इधर आ रहा है। ये आर्टिकल नंबर मुझे यहाँ नहीं चाहिए, इसकी यहाँ जरूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसको वहां प्लेस कर दिया। ये मैं कहना चाह रहा था, समथिंग लाइक दिस। अभी देखना आप, ठीक है। अब देखो ये चीज आ रहा था मैं, राइट। तो यहाँ पे आपका एक्चुअली इंडेक्स नंबर है, जो फर्स्ट लाइन में मेरा स्टार्टिंग में दिख रहा होगा, जो नया आर्टिकल ऐड कर रहा हूँ। और यहाँ पे कौन सा है, एक्चुअल आर्टिकल्स का काउंट है, जो टोटल नंबर ऑफ काउंट है। ये कैसे आ रहा है, क्योंकि मैंने मेरे लिस्ट आइटम में ये मैंने एक लेबल ऐड किया, और जो कि मेरा एक्चुअली
मैं ग्लोबल काइंड ऑफ यूज कर रहा हूँ एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट अगेन अपना। तो अब चाहो तो आप चाहो तो डिटेल में भी यहाँ पे अगेन मुझे मान लो यूज करना है तो क्या करूंगा मैं, इसको एज इट इज कॉपी पेस्ट करूंगा, यहाँ पे भी कॉपी करूंगा, और फिर अंदर भी मुझे यहाँ कुछ तामझाम करना है तो आई कैन डू दैट, राइट। अब मैं किसी के भी अंदर जाऊंगा तो देखो न्यू लेवल दिख रहा है, ऑब्वियसली ये न्यू लेवल एज ए स्टैटिक वैल्यू दिख रही है, पर आप चाहो तो इसमें कुछ डेटा मैप करके यहाँ दिखा सकते हो, राइट, इफ यू वांट, राइट। तो क्लियर हो रही है चीज। अब चाहो तो कहीं पे भी मैं चाहूंगा ये आप एज असाइनमेंट लेना इस चीज को, यू डिफाइन हियर, आप अपने चाइल्ड व्यूज में डिफाइन करते हो और कहीं भी यूज कर सकते हो डिफाइन, मतलब मैं ऐसा बोलूंगा यहाँ पे डिफाइन एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट हियर, ठीक है, डिफाइन करो उसको एंड यूज इट, ठीक है। फिर आप चाहो तो यहाँ डिटेल व्यू में बॉडी के अंदर यूज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। सिमिलरली यू कैन यूज इट हेयर ऑल्सो, राइट। समझ पा रहे हो इस बात को, क्लियर है ये चीज। तो कुछ भी नहीं है, एक स्टोर पे फोकस करो। एक स्टोर इज नथिंग बट आपका एक मेन ऑब्जेक्ट, उसको मैंने बना दिया ग्लोबली एक्सेस काइंड ऑफ। ग्लोबली मतलब क्योंकि अभी ऐप लेवल पे बनाया इसलिए ग्लोबली, पर अगर मैं ऐप से निकाल दूं और मैं डायरेक्ट लिस्ट से इंटीग्रेट करना शुरू करूं तो लिस्ट से फिर वो आपका अंदर के जितने भी चाइल्ड व्यूज है उनके लिए एक्सेसिबल बन जाएगा, ठीक है। पॉइंट ये है। तो अभी यहाँ पे हमने ऐप लेवल पे किया, तो अब वो पूरे ऐप लेवल पे इट इज एक्सेसिबल, और उसके फिर मैं जहां भी मुझे यूज करना है, जिस भी चाइल्ड व्यू, मान लो मुझे यहाँ यूज नहीं करना है तो मैं इसको कमेंट कर दूंगा। मान लो मुझे यहाँ यूज नहीं करना है तो जरूरी नहीं कि यहाँ पे मुझे डालने की जरूरत है, पर मैं डायरेक्टली फिर यहाँ यूज करूंगा, राइट, बेसिकली ऐसा कुछ। यहाँ पे मैं को सिर्फ डायरेक्टली डिटेल स्क्रीन पे यूज करना है, ठीक है। और फिर ये जो मैंने जो जो यहाँ पे यूज किया मैं इसको हटा दूंगा और मैं इसको यहाँ मूव कर दूंगा, जो भी मुझे यहाँ दिखाना है, बेसिकली पॉइंट ये है, ठीक है। अभी मैं अनडू कर देता हूँ, ठीक है, ये चीज क्लियर हो रही है। तो बेसिकली आपके कहीं भी चाइल्ड में आपको जहां भी यूज करना है यू कैन यूज इट, और बिंदास, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड। आई होप मतलब इसमें कुछ ऐसे कंफ्यूजन की बात नहीं है। फिर भी यू आर गेटिंग कंफ्यूज, लेट मी नो, पर मैं बोलूंगा एक बार खुद से ट्राई करो ये चीजें, बहुत बेसिक है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और इसमें कोई ऐसा सच कंफ्यूजन का चीज नहीं है। बट स्टिल इफ यू गेटिंग मतलब एनी प्रॉब्लम, स्ट्रगल, डाउट, लेट मी नो, ठीक है। तो आज के लिए हम रैप अप कर सकते हैं फिर हम लोग, और एक और एमवीवीएम वाला चीज लेना था, बट अभी मैं फिर चाहूंगा नेक्स्ट सेशन में लेते हैं हम लोग, वो थोड़ा सा डिटेल टॉपिक है तो इट विल टेक सम टाइम, ठीक है। तो आई होप आज जो देखा हम लोगों ने क्लियर हो रहा है वो स्टेट ऑब्जेक्ट वाला चीज, ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट और आपका स्टेट ऑब्जेक्ट, इनका डिफरेंस, की डिफरेंस, और आपका एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट कैसे वर्क करता है, ठीक है। क्लियर है ये चीज, हम सब कर सकते हैं एक बार, और अगले सेशन में मिलते हैं। बाकी ट्यूसडे या वेडनेसडे को रहेगा, आई विल लेट यू नो इन द लेट इवनिंग, जो कि हम लोग लेते हैं अराउंड 9:30 PM IST, ठीक है। तो थैंक यू सो मच अगेन। आपका जो असाइनमेंट चल रहे हैं, एंड अगेन असाइनमेंट से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। असाइनमेंट नथिंग बट हमने इनिशियली एक असाइनमेंट दिया था, तो हम जो जो चीज सीखते जा रहे हैं वहां पे बस ट्राई आउट करनी है चीजें, आपको कुल मिला के हैंड्स ऑन करना है उस चीज का, ठीक है, एज सिंपल एज दैट। तो जिसमें एक जॉब एप्लीकेशन थी वो, उसी में हम लोग चीजें खेल रहे हैं, क्योंकि अभी तक हमने इसे लिस्ट देखा, या हमने नेविगेशन देखा, स्टेट बाइंडिंग देखा, आज हमने जो ये एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट देखा, और आपका स्टेट ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट, ये वाली चीज, और असिंक का वेट, ये जो जो चीजें हमने देखी है, ये सिमिलरली आप वहाँ पे अपना ट्राई आउट कर सकते हैं, वहाँ पे स्कोप है यूज करने का, राइट। वहाँ पे एक्चुअली डेटा पास कर रहे हैं, राइट। तो अब आप अगेन एनवायरमेंट ऑब्जेक्ट से डेटा पास करके देखना, और सेम आप स्टेट ऑब्जेक्ट, ऑब्जर्व ऑब्जेक्ट भी वहाँ पे यूज करना, और फिर देखना वो चाइल्ड की स्टेट मेंटेन कर रहा है कि नहीं। तो आपको वहाँ पे चीजें दिखेंगी, राइट, क्योंकि वहाँ पे स्कोप है, उस तरह का कंटेक्स्ट है वहाँ पे, तो यू कैन यूज इट एंड एक्चुअली उसके साथ खेल सकते हो आप वहाँ पे, ठीक है। तो आई होप ये टॉपिक समझा होगा, और आप इसको ट्राई करो, और अगले सेशन में मिलते हैं हम लोग, जो भी मोस्टली ट्यूसडे वेडनेसडे। यस अंकिता, Uh, can we talk about after this session? I just need your 5 minutes, if you don't हाँ mind. श्योर वी कैन कनेक्ट प्लीज, यस, ठीक है। सो दैट्स इट, या थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग सेशन ऑन वीकेंड, एंड सी यू ऑन ट्यूसडे और वेडनेसडे, विल लेट यू नो, थैंक यू। प्लीज मेक श्योर हैंड्स ऑन करो थोड़ा सा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे हम लोग एक्चुअली कंबाइन लेने वाले हैं, और अगेन डिजाइन आर्किटेक्चर पैटर्न कंबाइन, ये सब आगे के चीजों में लाइंड अप है, और सॉफ्टवेयर के अगेन कुछ कोर कॉन्सेप्ट चीजें जो अभी हम ले रहे हैं, अगेन ये बहुत बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, बट वो वेरी इंपॉर्टेंट। तो पहले हम वही कवर कर रहे हैं कि आपको एक सॉफ्टवेयर का बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाए, फिर हम इन चीजों को टच करें, लाइक कंबाइन, देन योर डिजाइन आर्किटेक्चर पैटर्न्स, और भी चीजें जो भी इससे रिलेटेबल है, इवन सॉफ्ट डेटा भी लेंगे हम लोग, तो उस तरीके से। कूल, ठीक है, थैंक यू। I have a request, Kushal. So Yes. in next session, if he could take up the combine, that would be nice, because कंबाइन में एक्चुअली इट टेक सम टाइम, एक्चुअली कंबाइन के लिए अभी तक हम लोग रेडी, थोड़ा सा मैं टाइम लेना चाह रहा हूँ उस चीज का। I think so. I'm gonna have one more interviews and all. So I have ठीक है, आई used विल it. सी, अगर इस कंटेक्स्ट में अगर बैठ रहा है तो मैं देखता हूँ,
अदरवाइज मुझे एक्चुअली कुछ और टॉपिक्स कवर करने हैं उसके पहले, तो Okay, that's okay, no worries. I'm just, yeah, हाँ, that's it. cool. Thank Okay you. guys, then thanks everyone. Yeah, thank you.